Odometer. Odometer is a device which is fitted on the dashboard of a vehicle to measure the distance traveled by the vehicles. जो व्हीकल के आगे डैशबोर्ड के ऊपर जो आगे लगा होता है एक मीटर, जिसके अंदर रीडिंग्स जो हैं वो चलती हैं किलोमीटर्स में, आपने यूजुअली देखा होगा। तो वो हमें क्या रीडिंग शो करता है कि जो व्हीकल है वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है। Okay, so that device is known as odometer. Next is the displacement. Displacement. It is the shortest distance from initial to final position of a particle. It is represented by the vector drawn from initial position to its final position. So displacement is the shortest distance कि person, if the person is moving from initial to final position, if the person is moving means कहीं से वो start करेगा और कहीं पर जाके वो end करेगा। ओके तो उस केस में उसने कितना displacement किया, तो displacement होता है shortest distance from initial to final position. If I consider कि person A point से B पॉइंट तक जाना चाहता है, तो पर्सन की मर्जी है कि पर्सन कैन फॉलो लाइक दिस वे, कैन फॉलो दिस पाथ, और इफ द पर्सन कैन वांट टू गो लाइक दिस वे ही कैन गो, ही हैज़ सम वे कि वो यहाँ से, इसका ये भी रास्ता है, वो यहाँ से भी जा सकता है, और आल्सो लाइक दिस वे और बाय दिस वे। मेन तो उसने ए से बी तक पहुँचना है। तो यहाँ पर इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ से अगर मैं इसको नेम दे देती हूँ, लेट इट बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पाथ। इफ़ द पर्सन गोज़ फ्रॉम ए टू बी बाय फर्स्ट पाथ तो उसका डिस्टेंस की वैल्यू कुछ आएगी, सेकेंड पाथ से जाएगा तो डिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी, और थर्ड से अगर जाएगा तो डिस्टेंस की वैल्यू में भी डिफरेंट हो सकती है और मे भी सेम हो सकती है वन के अकॉर्डिंग अगर सिमेट्रिकल है, और अगर फोर्थ से जाएगा तो डिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी। ओके बट यहाँ पर जो डिस्टेंस, इन सब में से जो डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, सबसे कम होगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में। उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मीन्स चाहे पर्सन लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो कर रहा हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पाथ रहेगा। सो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. And the students, how we can represent the displacement? It is represented by the vector drawn from initial position to its final position. For example, if I take AB, if I let it be, AB is the displacement, means AB here is the straight line. So if AB is the straight line, I want to represent in a vector form. So I will write an arrow over it. We will learn about the vector concept later on, but for now you just understand that displacement is a vector quantity, means it has both magnitude as well as direction. So it has both magnitude as well as direction. To represent the direction, I have to write an arrow over its variable that you have taken. I can take AB equal to X. Okay, so in place of X I can write X, but to represent the direction I have to write an arrow over it. We will discuss about it in detail later on. Here is the example to explain the displacement. First, let us suppose the object is going from A to B, then B to C, then C to A. Okay, so here,
sorry, so here in the first example I have taken that the person is going from A to C. First case is the person is going from A to C. By which path? Following the path A to B, then B to C. Now what will be the displacement of the object? Though the person is moving from A to B, then B to C, but we have to check what is the shortest distance. हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि shortest distance कौन सा है, चाहे वो AB से BC जा रहा हो, पर हम पहले फाइंड आउट करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है. नाउ हेयर वी ऑब्जर्व कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है A से C तक जाने का वो तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम A टू C. सो AC इज ए डिस्प्लेसमेंट. सो एज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी आई हैव पुट एन एरो ओवर इट. सेकेंड एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम A टू B, B to C and then return C to A. A पर वापस आ गया इस टाइम T में. Then the displacement of the object in time T will be 0. तो उस केस में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 होगी. मीन्स अगर ऑब्जेक्ट जो है अब वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है, चाहे वो जितना मर्जी डिस्टेंस कवर कर रहा हो, बट पर्सन रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. ओके, सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि इफ़ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाएगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी. Okay, then is the difference between distance and displacement. First point, it is the actual path traversed by the object in the given time, and displacement is the shortest distance between the initial position and final position. It is the actual path, and here it is the shortest distance between initial and final position. सेकेंड, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. यहाँ पर डायरेक्शन मैटर नहीं करती, यहाँ हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. बट हेयर इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. वी नीड टू डिस्कस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. थर्ड, डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग बॉडी मीन्स अगर कोई बॉडी चल रही है, अगर एक रुकी हुई बॉडी है तो उस केस में तो डिस्टेंस 0 ही होगा, क्योंकि वो रुकी हुई है, वो रेस्ट पर है, वो चल ही नहीं रही, तो डिस्टेंस 0 होगा. लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता. बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी 0, पर वो 0 हो सकता है. एज वी हैव learned in this example that the body come back to its initial position, so its displacement is 0. means ये कब पॉसिबल होगा 0 वाला केस? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएंगी. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर डिस्टेंस आर पॉजिटिव और 0. कि डिस्टेंस की जो वैल्यूज़ हैं उनका साइन जो है वो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं. डिस्टेंस जो है वो 0 हो सकता है. अगर मैं कहूँ कि बॉडी इज एट रेस्ट एंड इफ़ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, यू विल से मैम बॉडी रेस्ट पर है तो उसका डिस्टेंस 0 होगा. देन डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी. Then is the case possible values for the displacement are positive, negative और 0. 0 वाला एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ स्टडी किया, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकती है. नेक्स्ट इज़ द पॉजिटिव, उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है. नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ द नेगेटिव वैल्यू फॉर द डिस्प्लेसमेंट बी पॉसिबल. इफ़ आई कंसीडर द बॉडी इज मूविंग in a straight line, let it be, here O is the origin and A is the any point, and the body moving from O to A, that is X I will take that another point B. If I take here that the body is moving from B to A, बॉडी जो है वो B से A
आ रही है किस टाइम में, इन टाइम t. नाउ आई विल राइट द वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम O to A and O to B. यहाँ पर मैं डिस्टेंस की वैल्यू लिख रही हूँ. O से A में कितना डिस्टेंस है, लेट इट बी एक्स एफ. और O से B तक जो एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो कितना है, लेट इट बी एक्स आई. यहाँ पर मैंने एक्स एफ और एक्स आई क्यों लिखा, एफ इसे और आई क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ऐसे सपोज यहाँ ये सिचुएशन ऐसे ली है कि पर्सन जो है वो बी से ए आ रहा है. पर्सन जो है वो बी से ए आ रहा है किस टाइम में, इन टाइम टी में. सिचुएशन तो आप कंसीडर करोगे कि आप सिचुएशन को क्या लेके चल रहे हो. तो मैंने यहाँ ये सिचुएशन ली है कि पर्सन इज़ कमिंग बैक फ्रॉम बी टू ए इन व्हाट टाइम, इन टाइम टी. और यहाँ मैंने डिस्टेंस ऐसे मार्क कर दिया कि बी जो ओ से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स आई, और ए से जो ओ जो है वो कितने डिस्टेंस पे, एक्स एफ. ये आई और एफ का राइट करने का यहाँ पर ये मोटिव है कि ये एक्स आई मतलब इनिशियली यहाँ पर है इन टाइम टी, मतलब टाइम टी के बाद आफ्टर टाइम टी में ए पर पहुंच रहा है, मतलब ये उसकी फाइनल पोजीशन होगी और ये होगी इनिशियल पोजीशन. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एक्स आई फॉर द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस दैट इज़ फ्रॉम ओ, और ए के लिए मैंने डिस्टेंस की वैल्यू राइट की एक्स एफ. अब मुझे फाइंड आउट करनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. सो टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, what I will write? I will write the final minus initial value. जो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना है. फाइनल पोजीशन A है और A का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, एक्स एफ है, और इनिशियल पोजीशन एक्स आई थी, ठीक है, बी थी पोजीशन, और उसका डिस्टेंस क्या था, ओरिजिन से एक्स आई था. तो एक्स एफ माइनस एक्स आई. अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें, जो ये एक्स एफ है वो स्मॉल है एक्स आई से, एक्स आई बड़ा है और एक्स एफ छोटा है. मीन्स छोटे में से अगर आप स्मॉल में से बिग वैल्यू माइनस कर रहे हो तो ये आंसर जो है डेफिनेटली नेगेटिव आएगा. सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव. जो वैल्यू आएगी डिस्प्लेसमेंट की वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. सो इज दिस पॉइंट क्लियर दैट द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द डिस्प्लेसमेंट आर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड. जो यहाँ पर डिस्टेंस जो है, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है किसी पाथ से तो हमें उसका पाथ देखना होगा कि कौन किस टाइप का पाथ वो फॉलो कर रहा है. जो पाथ वो फॉलो करेगा हमें उसी की ही पाथ की लेंथ फाइंड आउट करनी है. बट हियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइप ऑफ पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती. एज आई टोल्ड यू कि चाहे पर्सन फर्स्ट वाले पाथ से जाए, सेकेंड से जाए, या थर्ड से या फोर्थ से जाए, it does not matter कि which path the body is following. We need to take only the shortest distance. So the displacement does not depend upon the type of path followed. So students, up to here we have discussed about the distance and displacement. In the next video we will learn about the speed and velocity. Thank you.